reminds us that dreams have no limits and aspirations knows no bounds. It is a call to reach for the stars, a promise that with determination and the right opportunities, every child can soar high. Today, as the stage comes alive, you will all witness talent, creativity, and resilience like never before. Our students have poured their hearts into every performance, from inspiring speeches to soulful songs, from traditional dances to thought-provoking plays. This morning is a kaleidoscope of their hard work and dedication. Let us first extend a heartfelt thanks to our dedicated teachers and staff. गुरु है जो मार्गदर्शक बने, जीवन की हर मुश्किल को सरल करें. Your tireless efforts have shaped these young minds and guided them on their journey. To our dear students, this day is yours. You are the stars of the show and the heart of our mission. Remember, no dream is too big, no aspiration too high. With courage in your hearts and fire in your souls, the world is yours to conquer. As we celebrate, let us hold on to the shared vision of creating a brighter, better future for every child. So, let's dive into the morning festivities and rejoice in the spirit of aspiration that unites us all. प्रभु की वंदना से होता है दिन का शुभ आरंभ. इस मंगल प्रभात पर करें प्रार्थना का शुभ कर्म. Let us now call upon the team prayer to begin this beautiful day to seek blessings for a successful and joyous celebration. I'm going to recite the school prayer. O Lord, I ask you, expand for me my breast with assurance and ease for me my task. Increase me in my knowledge. Guide us to the right path, the path of those you have favored. O Lord, I ask you for the beneficial knowledge, goodly provision, and acceptable deeds. आमीन. से करे स्वागत आज, आशाओं के दीप जलाएं हर बार. I now request our esteemed trustee, Mr. Manzar Jamil. सुबह में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ. Good morning to everyone present here. It's an extremely proud and emotional moment for us all on this very special day, as our school has completed one more fantastic year. I would like to wholeheartedly invite you all to our school's second annual concert function. As you are aware that education plays a critical role in the empowerment of the poor and backward Muslim community, we are lagging behind in every walk of life, socially, mentally, and financially. There are historical reasons behind this, but despondency should not set in, hence efforts should be made. We have started with this basic Montessori school. Remember, the journey of 1,000 miles begins with the first step. That baby step has been taken. It's an uphill task, but with resolute determination, we can achieve our goal. It is possible through the generous support from our numerous well-wishers and unstinting help from our donors and patrons. Panchannagram, on the eastern fringe of Kolkata, is an underdeveloped area. In recent years,
the population has swelled to lakhs, but the social infrastructure has not grown up correspondingly. Lack of a school for basic education is very essential. The inhabitants belong to the marginalized sector with low income status. It's not possible for them to send their child to school with a meager income. The resultant effect is disastrous. The children are left to fend for themselves. The boys either are pushed into child labor and the girls sent to houses as maids. It is in this scenario we felt the need of establishing a school in this area. Instead of cursing the darkness, we thought of lighting our share of lamp, and Alhamdulillah, we have been running this school since past 5 years. Please remember, the performance these children have put up deserves our praise. They are first generation learners. पहले हमने अपना जो प्रोग्राम हुआ था, आगाज था, आज हमारा ये जो प्रोग्राम है वो अज़्म है। हमने ये अज़्म किया है कि हम इस स्कूल को और ऊंचाई तक ले जाएंगे। फिलहाल हमारे यहाँ तकरीबन 300 बच्चे, 275 बच्चे हमारे यहाँ अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनको हम मुफ्त फ्री इंग्लिश एजुकेशन, मुफ्त बुक्स एंड स्टेशनरीज, मुफ्त यूनिफॉर्म, शूज, बैग, स्वेटर्स, एंड सिंस दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी अंडरनरिश्ड बैकग्राउंड, तो उन लोग को हम लोग मिड डे स्नैक्स भी प्रोवाइड करते हैं टू प्रोवाइड देम सम न्यूट्रिशन। तो हम लोगों की ये एक छोटी सी कोशिश है। हम लोगों ने सोचा कि ग्राउंड लेवल पे कुछ करना है। आज यहाँ हम आप तमाम साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान इतने डिग्निटरीज मौजूद हैं। ये लोग वो हैं जो सोशल कॉन्शियसनेस है, जो समझते हैं कि इस काम को हिम्मत अफजाई होनी चाहिए, इस काम को सपोर्ट मिलना चाहिए। इसकी मजीद तफसीलात हमारे दूसरे ट्रस्टी हैं, वो आपको फराहम करेंगे कि हम लोगों का क्या आगे एम है। मगर मैं आई वुड लाइक टू हार्टली थैंक द इंस्ट्रक्टर्स इन द डेडिकेशन टू ट्रेन द स्टूडेंट्स है। आज जो बच्चे हैं इनको जो कोशिश की जा रही है और उनको जो ट्रेन किया है, उसमें जनाब SM राशिद साहब का, उबैद अहमद साहब का, निहारिका मुखर्जी का और संजीव राय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम सामीन का, आप तमाम गार्जियंस का, आप तमाम बच्चों का, आप जो यहाँ आज मौजूद हैं, ये हमारी हिम्मत अफजाई के लिए है और हमारे क्या फ्यूचर्स प्लान है वो सब अभी आपको हमारे दूसरे ट्रस्टी वो आपको बताएंगे। मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। मुझे डरा नहीं सकती फजा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकियो दरख्शानी, तो ऐ मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। शुक्रिया। हमारा सोच क्लियर है, इरादा नेक है और अज़्म मुस्तहकिन है। डिटर्मिनेशन, डिजायर अगर स्ट्रांग है तो कोई भी आदमी किसी भी काम को कामयाबी मिल सकती है, उसको हासिल कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो हम लोगों ने भी इसी तरह से कोशिश की। हम लोग कुछ चंद ट्रस्टीज हम लोग जमा हुए, वर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लक्स टुगेदर, और हम लोग मैंने एक सपना गढ़ा, एक ख्वाब देखी कि हम लोग इकोनॉमिकली चैलेंज चिल्ड्रेन जो हैं उनके फैमिली जो है उनके बच्चों को हम लोग एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे। बिकॉज एजुकेशन इज द ओनली टूल विच कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन, विच कैन ब्रिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन। हमारा कौम जो है वो उसमें तालीम का बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसके बावजूद भी कहा गया है, अल्लाह ताला खुद बोलते हैं कि हमसे दुआ करो कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हम उनको इल्म दो। तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्ल मुस्लिम, ये हम लोग का हदीस में बोला हुआ है कि हर मुसलमान औरत और मर्द को इल्म हासिल करना जरूरी है। इसके बावजूद भी मुसलमान तमाम कौम से पीछे है।
ये बहुत ही अफसोस की बात है। हमारे बच्चे कमज़ोर होने की वजह से, इकोनॉमिकली कमज़ोर होने की वजह से मजबूरन वो चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, छोटा छोटा पेशा में ये हो जाते हैं और वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यही सोच लेके हम लोग भी ट्रस्टी ने हम लोग एक प्लान किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयारी किया जाए जहां से हम लोग उन लोगों को सपोर्ट दे सके, एजुकेशनल लाइन में सपोर्ट दे सके। और ये कोशिश के बाद में हम लोगों ने कलकत्ता एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का बुनियाद डाला। कलकत्ता चैरिटेबल एंड ट्रस्ट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग गरीब के बच्चों को या इकोनॉमिकली जो चैलेंज बच्चे हैं उनको इनके लाइन में हम लोग सपोर्ट करते हैं। इस सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने बड़ी कोशिश के बाद में आप जैसे लोगों की मदद की वजह से हम लोग कलकत्ता के पश्चिम ईस्टर्न साइड में कलकत्ता एकेडमी हम लोग ने कायम किया। महज ये 2019 में 1100 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल एक जगह लिया गया फर्स्ट फ्लोर में, और उसके बाद में हम लोगों ने उसको वहाँ एक स्कूल छोटा सा कायम किया। हमारा एक सपना था, एक सोच दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट था। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वो जो गरीब बच्चे हैं उनको इस तरह से पढ़ाएंगे जहाँ पर बड़े बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग का स्कूल अगर जाके देखें उसका इंटरनल एम्बियंस, बाहर का एम्बियंस हो सकता है खराब हो, लेकिन इंटरनल एम्बियंस किसी भी बड़े स्कूल से कम नहीं है। और हम लोगों ने एजुकेशन तालीम हासिल करने का वो प्रोसेस डेवलप किया है जहाँ से हम लोग को उसको पूरा टोटल एक डेवलपमेंट दे सके, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए बॉय, ऑफ ए चाइल्ड हमारा एम है। हम लोगों ने इसके लिए अच्छा करिकुलम किया है। हमारा सिलेक्शन, टीचर्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग सब क्वालिफाइड टीचर ये लिए हैं। उसके साथ में वो सिर्फ क्वालिफाइड नहीं है बल्कि वो पैशनेट है। उनका भी, हर टीचर का भी पैशन है जे वो लड़कों को सपोर्ट करे, अच्छी से अच्छी तालीम दे। हमारा स्कूल का मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि हम जो बड़े बड़े स्कूल जहाँ पे हमारा कलकत्ता में आस पड़ोस में है उससे कहीं बेटर हम लोग मॉडल तैयार किए हैं बच्चों को तालीम देने के लिए। हम लोग, नॉलेज इज नॉट ओनली गेन्ड बाय रीडिंग द बुक्स, ये सिर्फ किताब से नहीं पढ़ी जाती है। वो आफ्टर ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग्स एंड आफ्टर विजिटिंग द प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस यू कैन गेट नॉलेज, यू कैन कलेक्ट नॉलेज। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बच्चों को थाना ले गए, कम्युनिटी विजिटिंग में हम लोग थाना विजिट कराया, आनंदपुर थाना का विजिट कराया। वी मेक देम अवेयर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस स्टेशन, who are holding the charges, who are the people who are the in charge of different sections। पहले तो उनका हेजिटेशन उनसे खत्म हुआ। ये पुलिस का जो डर रहता है, एक हेजिटेशन रहता है, उससे उसकी दूरी उसको खत्म हुआ। और दे केम टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस स्टेशन, और वो उनको मालूम हुआ कैसे कंप्लेन किया जाता है, कैसे कंप्लेन रिसीव किया जाता है। हम लोगों ने अपने बच्चों को विजिट कराया बोरो ऑफिस में, इसलिए कॉर्पोरेशन का सिविक बॉडी का कैसे काम होता है वो उसको समझ सके और वो बड़ी आसानी से समझे। अभी अगर हम किसी आदमी को बोले कि क्या आप जाओ बोटानिकल गार्डन के बारे में, आप किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि बोटानिकल गार्डन के बारे में उनको किताब में पढ़ाते हैं और हम बोलते हैं कि आप लिखो उसके बारे में, तो आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू टेक एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। लेकिन अगर बोटानिकल गार्डन अगर घुमा देते हैं और उसको हम बोलते हैं तो बड़ा इत्मीनान से बोल नहीं सकता है। तो ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है। हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस का भी विजिट कराया है, हम लोग लाल बाजार का विजिट कराया है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उससे उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है नॉलेज में। और हम लोगों ने मॉल का भी विजिट कराया है ताकि मॉल में कैसे फंक्शनिंग होता है। तो दीज आर द मेथड्स वी हैव अडॉप्टेड टू इम्पार्ट नॉलेज विद इन आवर चिल्ड्रन। हम लोगों ने एग्जीबिशन कराई है, फिजिकल हेल्थ का प्रोग्राम हम लोग का हर 2-3 महीना के बाद होता है। हम लोग मेडिसिन कैसे से कुछ जहाँ तक हो सकता है हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। हम लोगों ने एनुअल फंक्शन कराया और बहुत जगह टाई अप भी कर दिया बच्चों को जो इंटरेस्टेड थे। हम लोग का एक और तरीका हम लोगों ने अडॉप्ट किया है टू
invite the people of different fields, जो सक्सेसफुल कमिट आदमी हैं उनको बुलाते हैं हम लोग। बुलाने के बाद में हम लोग उसको उनसे इंटरेक्शन कराते हैं ताकि बच्चों को तमाम फील्ड के बारे में मालूम हो सके। उनको ये नहीं समझ पाए कि ये नहीं समझ सके कि सिर्फ डॉक्टर ही बनने से आदमी सक्सेसफुल होता है, सिर्फ इंजीनियर ही बनने से सक्सेसफुल होता है, सिर्फ WBCS ऑफिसर IAS ऑफिसर बनने से ही सक्सेसफुल होता है। देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स वेयर द चाइल्ड कैन एक्सेल इन हिज लाइफ। ये दिस इज आवर मेथड ऑफ इम्पार्टिंग द एजुकेशन थ्रू KECT। हम लोगों ने KECT कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट किया था, फिलहाल अभी बंद है। हम लोग उर्दू मीडियम से जोड़े थे, उसको उर्दू एकेडमी से जोड़े थे। उससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम 8, 9, 10 को रखा था, फोकसिंग ऑन नीट, क्लैट और JEE के ऊपर में। लेकिन कोविड की वजह से हो गया और फंड की क्राइसिस की वजह से अभी हम लोग उसको नहीं कर सकते। फिर सोच रहे हैं हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह हम लोगों के हम लोग का सपना था कि हम लोग बड़ी स्कूल बनाएंगे, लाइक सेंट जेम्स, डॉन बॉस्को, क्यों नहीं बना सकते हैं। हमारा ज़कात जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग प्रॉपर्ली अगर यूज करें तो इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट स्कूल एंड कॉलेजेस। और इसी का हेल्प लिया हम लोगों ने। और आप लोग के तरह अच्छे आदमी जो हैं, जो नेक आदमी है, जो हमारे डोनर है, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमारी सपोर्ट की। सपोर्ट टू KECT इज नथिंग बट सपोर्ट टू द स्टूडेंट, सपोर्ट टू द चिल्ड्रन। हम लोगों ने बालीगदा एक जगह है, बुजरहाट से थोड़ी सी दूर पर है, काफ़ी 3-4 साल मेहनत करने के बाद में हम लोग तकरीबन 90 कट्ठा जगह लिया है। इट अमाउंट्स अबाउट 4.5 बीघा विच इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल स्कूल एंड एफिलिएटेड स्कूल। और हम लोग का हम लोग का पूरा उसमें प्लान है कि उसमें हर तरह का शोभा उसमें रखेंगे, हम लोग हर तरह का स्ट्रीम रखेंगे। और एटलीस्ट ये है कि दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि सब आदमी डॉक्टर ही बन जाएगा, सब आदमी इंजीनियर बन जाएगा। बहुत सारा ऐसा बच्चा अल्लाह ताला उसे बनाया है कि वो 9 या 10 के बाद ड्रॉप कर सकता है। तो हम लोग ने प्लान किया कि वहाँ टेक्निकल हम लोग एक पॉइंट भी रहेगा, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट भी रहेगा जहाँ से हम लोग उन बच्चे को ड्रॉप आउट जो 9-10 के बच्चे हैं वहाँ उनको टेक्निकल एजुकेशन दे सके ताकि वो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके। मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग देखिए, इंसान के हम लोग का मुसलमान में 4 फर्ज है। वो 4 फर्ज में वो सब जितनी फर्जे हैं, कलमा पढ़ने के बाद जो जितनी फर्जे हैं वो आप उसमें एक छोड़कर सब अपने लिए कर रहे हैं। एवरी प्रेयर इज फॉर यू एंड बिटवीन यू एंड अल्लाह ताला। द ओनली प्रेयर ज़कात इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, for the contribution to the society. I will request all our guests and the people and their relatives to come forward and join hands with us to donate your zakat का contribution आप कीजिए। और हमारे ड्रीम जो है, हमारा सपना है, ये हमारे ख्वाब है, उसमें तामीर करने में मदद कीजिए। मैं यही चंद्र बोलकर इसलिए खत्म करता हूँ। अल्लाह।
इतिहास को मैं आई तहसीब का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में है, इस मिट्टी का आदर मुझ में है। मैं देशभक्त भी कर रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में हूं, किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। छोटे छोटे कदम मासूम अदाएं राइम्स के संग लाए खुशियों की फुहारें। Brace yourselves, my dear audience, for an overdose of cuteness as our tiny stars from Montessori 1 and 2 present their delightful rhyme time. From the classic Rain, Rain, Go Away to the lively beats of the Baby Shark, these little performers are sure to steal your hearts. Let's give them a thunderous round of applause as they come. Thank you. Go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go to Spain. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go to Spain. Do not show your face again. 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 Say that lasted,
now. With the guidance of these trustees and everyone's support, we are building a better society and respectable academy for the benefit of a society and the community. Thank you. I request Mr. Nayyar Azam Khan to come up and speak a few words of appreciation for our school. And this. And I'm privileged to be a part of this program. I did not know that this program would be so good. So I extend my warm wishes for the better prospects of this foundation. And I would love to be a part of this program whenever they call me. And hopefully we'll be able to do. उस पहले प्रोग्राम में मैं था और उस निस्बत से मैं आज भी हूँ क्योंकि मुझे दावत दी गई है। जज़ाकल्लाह खैर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमें सिखाया कि आप अपने भाई के लिए जो दुआ करते हैं वही दुआ फरिश्ते आपके लिए करते हैं। तो मैं आज ये दुआ करता हूँ अपने भाइयों के लिए और KCTC के लिए कि KCTC कलकत्ता की सबसे अच्छा स्कूल बने इंशाअल्लाह। और जो मैं आज स्टेज पर देखा हूँ, यकीन मानिए देखने वाले को लग रहा है कि आसानी से ये हो रहा है। इसके पीछे कितनी मेहनत है और साल भर की मेहनत है। यानी अगर बच्चा 1 सेकंड गलती करता है तो बाप माँ को लगता है कि नहीं मेहनत नहीं हुई। ये 1 सेकंड की गलती नहीं है, ये 1 सेकंड की मेहनत नहीं है, पूरे साल की मेहनत आज स्टेज पर दिख रही है। तो मैं लोगों से गुजारिश भी करता हूँ और पेरेंट्स से कि हमेशा स्कूल पे फेथ रखें, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल चलाता हूँ। तो समझे कोई स्कूल, कोई टीचर और कोई बच्चा बुरा नहीं होता। हर स्कूल अच्छा है और स्कूल के टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं और मैनेजमेंट कितनी मेहनत करते हैं, यू कैन नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड। आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यकीन माने आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो टीचर्स और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स कदर करें स्कूल की, स्कूल के मैनेजमेंट की और टीचर्स की। और स्कूल के पेरेंट्स और मैनेजमेंट और टीचर्स अगर पार्टनरशिप के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत जल्द ये स्कूल लमाटे और सेंट जेम्स से भी बेहतर बन जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे प्रोग्राम में तकरीर करना मेरे ख्याल से बच्चों को परेशान करना होगा, लेकिन जितने प्रोग्राम अभी हम लोगों ने देखा, जो डांस आइटम्स वगैरह जो बच्चों ने किया, मतलब एक वर्ड में अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो इट्स वंडरफुल। इन बच्चों को जिस तरह से मंजर जमील साहब ने और उसके बाद कलीम साहब ने कहा कि इकोनॉमिकली चैलेंज बच्चे इतने लिप सिंकिंग करके इंग्लिश गाने पर राइम्स जो है नर्सरी राइम्स वगैरह पे इतने अच्छे से इन लोगों का तरबियत इस स्कूल में किया जा रहा है। उनका डेवलपमेंट सिर्फ तालीम के सिलसिले से ही नहीं बल्कि और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किया जा रहा है वो एनुअल फंक्शन के इस प्रोग्राम से ही जो हम लोग के सामने ये चीज़ आया है। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
green dark cage. Here's Paul, the polar bear. Time for a little science. Here's Sam to break it down. Okay team, here's the deal. Burning fossil fuel like coal, oil gases is causing greenhouse effect. This gas trap heat in our atmosphere, making Earth warmer and causing climate change. Exactly. All the pollution from cars, factories and even power plants. And don't forget, cutting down trees make it worse. Absolutely. Start small. Turn off the light when you leave the room. Walk or bike. Instead of driving, recycle everything that you can. Now let's hear from Mayor Mary, who is making changes on a bigger scale. Ladies and gentlemen, in our town, we are switching to clean energy. Solar panels, wind turbines, you name it. And we are planting thousands of trees to soak up that extra carbon dioxide. Together, we are making a green revolution. Come here, let's make the whole town eco-friendly. Let's not forget Farmer Frank. He's got a role to play too. You were right. I am using sustainable farming methods, no harmful chemicals, rotating crops and keeping my soil healthy so it can absorb more carbon dioxide. That's right. Healthy soil is like sponge for carbon. Keep it up, friend. And here comes Fanny, the wind. And that's how it all comes together. Earth, sun, trees, oceans, animals, humans. We all need to play our part. Thanks everyone. With your help, I can finally start to clean. Let's keep coming together. Remember, we only have one Earth. And that's the message, folks.
can save our planet. Every little action counts. Save the earth! Save the earth! Save the earth! Save the earth! Play and an address to us for the pressing issue we are all facing on earth on this very day. We all need to take care of our environment to keep it clean and green, to make it livable for our future generations to come. Have some round of applause. It indeed took around 1 month or so for their preparations, beautifully prepared. Thank you, sir. Thank you. दिल में छिपा है बचपन का अरमान. Students from class 2 and 3 bring us a dance filled with joy and simplicity titled Dil Hai Chhota Sa. Their smiles and energy remind us that happiness is found in the smallest of moments. Chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain. Give me another chance, I wanna grow up once again. School ki umar. Our next performance is an ode to the joy of school life. Through this lively dance and laughter, our students will capture the magic of learning, friendship, and endless possibilities. खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे. आ जाओ पतंग ले. हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम. हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम. दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा. ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है. टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है. दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा. चले रहो. अरे समीना बेटी, अरे ओ समीना बेटी. जी दादी. देखो मेरी सुपारी खत्म हो गई है. जरा मुन्ना की दुकान से 1 रुपए की सुपारी तो ले आ. दादी तुम्हें तो पता है अब्बा ने मेरा दुकान पर बाजार से लाना बंद करा दिया और फिर अब तो 1 रुपए की सुपारी भी नहीं मिलती. अरे आग लगे उस मोई महंगाई को. फहमीना कहाँ है? उसे भेज, उसी से मंगवा लेती हूँ. दादी मुझे देर हो रही है, तुम रुबीना से मंगा लो. अरे बेटी रुबीना, जरा मुन्ना की दुकान से 1 रुपए की सुपारी तो ले आ. दादी मुझे भी तो स्कूल की देर हो रही है, तुम किसी और से मंगा लो. अम्मा देखना मेरी चोटी बांध दो ना, देर हो रही है. अरे कमबख्त मारियो तुम्हारा नाच जाए. अरे तुम्हारे बाबा ने तो तीनों का दाखिला करा दिया स्कूल में, एक भी मेरे काम की ना रही. जिससे देखो स्कूल भागे जा रही है. स्कूल जाना जरूरी है
कि मेरी सुपारी लाना जरूरी है। अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांध दो ना। अरे समीना जल्दी से बांध इसकी चोटी। अम्मा मुझे स्कूल की देर हो रही है और अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं। देर से स्कूल पहुंचने पर सजा मिलती है। सत्यानाश हो इस पढ़ाई का। अरे क्या मिलेगा इस पढ़ाई से? जिसे देखो स्कूल 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 है। स्कूल के नाम से धरने से उतर गई। अरे समीना ऊपर जाकर अपने अम्मा को तो उठा दे। मैं नहीं जा रही, बस एक तो उठते नहीं, उठते हैं तो बस 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 करते हो। अरे यही पढ़ती हो स्कूल में? अपने घर में अपने ही बाप की बुराई। बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। ऐसी लड़की ना आंखों देखी ना कानों सुनी। अरे तू तो बड़े बड़ों की नाक काटेगी। अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांध दो ना। देख मैं नाश्ता बना रही हूँ। अरे समीना जल्दी से बांध इसकी चोटी। अरे सुन रही है? क्या कान बहरे कर रखे हैं? बस सब मेरे पीछे पड़ जाओ। अल्लाह किसी को बड़ी बेटी ना बनाए और छोटी बेटी भी ना बनाए। बाजी मेरी चोटी बांध दो ना। ए दुल्हन, जब इसका दुकान पर जाना बंद करा दिया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी ना तरीका ना सलीका। जिस घर जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। बस जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अभी 10वीं जमात में गई हूँ, अभी से घर बैठा लो। क्या मिलेगा मुझे घर बैठाकर? अरे तू तो बड़ी करने नाराज हो गई है। नासपीटी उठने दे अपने अब्बा को और सबक सिखवा के छोड़ूंगी। गज भर की जबान हो गई है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना। समीना देख तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, इसकी चोटी बांध दे। हम तुम्हारे घर का काम न करेगा। इतना सारा कपड़ा, उतना सारा बर्तन हम में धोएगी। अरे वाह, जिसे देखो वही इतरा रहा है। अरे ओ मलिका विक्टोरिया, पैसे किस बात की लेती है? काम करने की सारा है, ना करने की एक नहीं। बस 10 कपड़ा धोएगी और 20 बर्तन। इससे जास्ती हमें धोएगी। तू भी पढ़ी लिखी लगे है, तल्ले दराज कहेगी। अरे जरा शक्ल तो देख अपनी आईने में। धोले मैं धोले, कपड़े ज्यादा नहीं है, सब छोटे छोटे कपड़े हैं। अम्मा अभी देख ना, कोई मेरी चोटी बांध दो ना। तुम रोज यही बोलता है कि छोटी छोटी कपड़ा है। कोई छोटी कपड़ा नहीं है और सब गंदा भी है। इसकी तो मैल भी नहीं छूटेगी। दुल्हन, इसे धुले हुए कपड़े दिया करो धोने के लिए। धोले मैं धोले, कपड़े ज्यादा नहीं है। देख अक्सर कम कपड़े भी धोते हैं। आज अगर ज्यादा हो गई तो कौन से खाता गई? तुम रोज झूठ बोलता है। सत्यानाश तो तेरा कमबख्त मारी। हमारे घर में हम ही को झूठा कह रही है। अरे घारा तो यहाँ से। दुल्हन, ये कौन सा अजाब काल रखा है? अम्मा अभी देख ना, मेरी चोटी बांध दो ना। देख बहन, कपड़े रहते इसकी चोटी बांध दे। इसे भी चोटी कुछ नौकर ही मौत आएगी। इधर आओ, हम तुम्हारा जुआ बनाएगा एकदम सुंदर सुंदर। रहने दे बंगारन जुड़ा बनाने को। रुबीना तू इधर आ, मैं तेरी चोटी बांधूंगी। अच्छा एक मिनट रुक, मैं भी कपड़े प्रेस करके आती हूँ। आज हम धो लेती है जास्ती कपड़ा। कल से जास्ती कपड़ा होगा तो ऊपर से पैसे लगेंगे। हाँ, हमारे ही घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। फैमिना अपने अब्बा को उठा दे, चाय बन गई है। अम्मा ना तो मेरे कपड़े प्रेस हुए हैं, ना तो मेरे जूते पॉलिश हुए हैं। ऐसे स्कूल जाऊंगी तो पीटी मैडम
क्लास पीटी नहीं, हमारी पीटी मैडम। जाने क्या बके जा रही है? अरे उस्तानी नहीं कह सकती। जो तू कह रही है इसका मतलब उस्तानी है ना? अम्मा, स्कूल में उस्तानी को मैडम कहते हैं। मेरा घर को तुम्हारे स्कूल होगा? अरे जब स्कूल में उस्तानी नहीं रही तो पढ़ाई का खाक होती होगी। अरे मैं चली गई तो कमबख्त मैडम आ गई। अरे ये तो कयामत के आसार हैं। दादी, अब स्कूलों में मैडम, टीचर, हेड मिस्ट्रेस और प्रिंसिपल होते हैं। जाने क्या नाक से नाक बक रही है? तेरे मुंह में खा। क्या अस्पतालों के सिर्फ नाम ले रही है नामुराद? दादी छोड़ो तुम तो। सारा दिन पान और सुपारी के अलावा और कोई बात ना क्या करो। तुम रिटायर हो चुकी हो। अरे फिर तूने टटकी? क्या क्या कहा? मैं क्या हो चुकी हूँ? दुल्हन देख लो पढ़ाने का नतीजा। अंग्रेजी में क्या बोल रही है तुम्हारी लाडली? समीना, तू चुप नहीं बैठेगी? उठने दिया अपने अब्बा को। तू बहुत बुरी लगी है। जरा देर से तुझे खामोश नहीं बैठा जाता? अम्मा, तुम मेरी चोटी बांध दो या फिर मेरे बाल ही कटवा दो। ईमान से भाई, अब तो बोल बोल कर मेरा गला भी सूख गया है। अरे समीना, तू तो भी इसकी चोटी बांधने जा रही थी। अरे कहाँ गायब हो गई? बस अम्मा 1 मिनट और। तेरा एक मिनट तो आज मैं निकलवा के रहूंगी। उठने दे अपने अब्बा को। तूने भी सुना होगा 100 सुनार की तो 1 लोहार की। अरे बेटी, घूर ना दे मगर घूर जैसी बात तो कर। अम्मा, इस बंगालन के काम में रूबीना की चोटी बनाने का काम भी जोड़ दो। मैं नहीं बनवाती उससे चोटी। उसे तो बस जूड़ा बनाना आता है, वो भी चिड़िया की घोंसले जैसा। ना भाई ना, मुझे नहीं बनवाना। अरे नहीं, हम सिखा दे तो 2-3 दिन में सीख जाएगी। फिर ये रोज की भी खत्म हो जाएगी। हम तुमको सिखा दे तो तुम रोज रूबीना की चोटी बना दोगी? हाँ, एकदम सीख जाऊंगी। बस हमारे पगार में 20 रुपए और बढ़ा देना। अरे ओ हराम सूरत, तुझे हमारे घर में पैसों का पेड़ नजर आता है? अरे किस बात के पैसे? लो और सुनो, अरे हमारे घर में तकसाल लगा है क्या? काम बढ़ाएगी तो पैसे नहीं बढ़ाएगी। हम यहाँ बेगार करने आया है। देख, तू मेरे मुंह मत लग और ये तू तड़ाक से बात करना छोड़ दे। हमारे मुंह लगती है? सूरत तो देख अपनी, सूरत है हराम। हम कुछ नहीं बोली। समीना बीबी हमको रोज रोज चोटी बनाने को बोलती है। इस मोई समीना का तो पक्का इंतजाम करूंगी। सुनो दुल्हन, आज से उस मोई बंगालन की करो छुट्टी और इस निगोड़ी समीना को बैठाओ घर पे। ये रूबीना की चोटी बांधेगी, घर के बर्तन धोएगी और कपड़े भी धोएगी। दादी आज काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। दादी आज सुबह तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? समीना, चुप नहीं बैठेगी? जैसी दादी वो वैसी पोती। नहीं है चुप होती, नहीं है खामोश। खामोश? दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। तू भी बहुत कल्ले दराज हो गई है। तेरा भी स्कूल जाना बंद कर दी। फिर तो मेरी चोटी बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। फूफिया आ गई, फूफिया आ गई, फूफिया आ गई। अरे मोहम्मदी, खैर तो है? बेटा सुबह सुबह कैसे आ गई? अकेले ही आई हो क्या? स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई ना। कौन सा स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों हो गई? अरे कोई मर गया है। कौन मर गया? खैर तो है? कोई दूसरे मुल्क का बड़ा आदमी मर गया, इसीलिए सारे स्कूल की छुट्टी हो गई। मेरा तो दिल धड़क गया कि जाने कौन मर गया। किसी की मौत की खबर सुनकर कमबख्त दिल धड़कने लगता है। फूफी, क्या हमारे स्कूल की भी छुट्टी रहेगी? भाई यहाँ पे जगह है। सारे स्कूल अब बंद रहेंगे। सरकारी लागू है ना। मैं तो अमीर को स्कूल के लिए तैयार नहीं कर चुकी थी। टीवी की खबरों में देखा। किसमें देखा? अम्मा, टेलीविजन पर। सुना है तुम भी फिल्मी गाने देखने लगी हो? अरे आग लगे उस मोई बाइस्कोप का।
और उसे देखने वालों का। चलो इस बहाने मोहम्मदी घर तो आई, इतने दिनों से राह देख रही थी। माशाल्लाह घर गृहस्थी वाली हो गई है। ये पार्लर कमरे बड़े सुंदर है। अम्मा स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या आप तो मेरी चोटी नहीं बांधेगा? काम खत्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, हम जाती है। ठीक है, बस वहां का दरवाजा बंद करके जाना। ठीक है। चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई, बस्ते वस्ते रखो और चैन से बैठो। अरे रुबीना, तू क्या सामने आजाद की तरह खड़ी है? बैठ जा बेटी। चलो दफा हो अपने कमरे में, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। दादी, वो तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग खराब कर रखा है। कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। क्या बात है समीरा, ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्या बताऊं मुक्कू, हर वक्त धमकाती रहती है। कैसे तेरा स्कूल जाना बंद? समीरा, तू चुप नहीं बैठेगी? अरे ये क्या तमाशा बना रखा है? चल जा अपने कमरे में। रुबीना, चलो बस्ते वस्ते उठा और अपने कमरे में जा। समीरा तुम भी चल कर कमरे में ही मेरी चोटी बांध देना। चल बहन चल, इत्मीनान से सारे दिन तेरी चोटी बनाऊंगी। चल समीना। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। देख लिया मोहम्मदी, ये स्कूल में क्या सीख रही है? क्या बात है अम्मा, बच्चों पे नाराज क्यों हो रही है? हर वक्त की डांट डपट अच्छी बात नहीं है। अरे काम की ना काज की, खाली स्कूल की पढ़ाई की। अरे क्या मिलेगा इस पढ़ाई से? अम्मा, अल्लाह के वास्ते उनकी पढ़ाई बंद मत करवाना। यह जितना पढ़ती है उनको पढ़ने दो। भाभी, तुमको भी कसम है, अगर उनकी पढ़ाई बंद करवाई तो मैं क्या करूं? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ समझ में आए या ना आए, उनकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए बस। तुझे भी क्या उन लड़कियों ने पढ़ा दिया? लो हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। मेरे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी ना अम्मा, तुमने मुझे नहीं पढ़ाया। और मेरे दिल ही जानता है मैं कितनी मुश्किल में हूँ। कैसी मुश्किल? आमिर के अब्बू ने उसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया और वो पहली ही क्लास में, मैं उसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। क्या नहीं करा सकती? अम्मा स्कूल का काम। घर पे कोई मास्टर लगा दो, वो पढ़ा दिया करेगा। माशाल्लाह हमारे नजर में क्या मुश्किल है, अल्लाह का ध्यान सब कुछ है। भाभी, ना तो अच्छा मास्टर मिलता है, ना हमारे पास उतने पैसे हैं। अरे ये सब कराने की क्या जरूरत है? खैर वो तो लड़का है और मुझे इन तीनों लड़कियों को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मा, खुदा के वास्ते की पढ़ाई बंद मत करवाना। अगर ये पढ़ लिख ले तो उस मुश्किल से 2-4 होना ना पड़े जो मुझ पर बीत रही है। और पढ़ी लिखी औरत अपने पैर पे खड़ी भी तो हो सकती है। भाभी, पढ़ी लिखी औरत अपने पे सहारा नहीं होती। शादी तक मैं भी हूँ, 10वीं तक पढ़ ले, लेकिन अम्मा की मर्जी नहीं है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? भाभी, अब 10वीं तक कुछ नहीं होता। BA कराओ, MA कराओ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अम्मा, ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। ना भाई ना, हमें नहीं करानी है नौकरी। है दुनिया क्या कहेगी? हो सकता है इतनी सरकारी उन्हें करानी है नौकरी, हर किसी से खबर है। हाँ बहन, अब तो नौकरी करने वाली लड़कियों को ही पूछा जाता है। इधर नौकरी लगी और ये रिश्ते आने शुरू हो गए। जमाना बदल रहा है। साला लोग एक ही है, साला दोनों को बोले हैं अलग अलग शिकायत की है दोनों की। साला लोग सब आपस में डिस्कस कर लिया। सहेली थी ना अकेला। अरे हाँ, बेचारी तो 3-4 महीने पहले मियां मर गया। क्लाइमेक्स थे कि उसको बड़ा करना शुरू करो। दादी क्या तुम हमसे कह रही हो? अरे हाँ तुम वक्त मारी। हाँ दादी क्या तुम मुझे पढ़ने के लिए कह रही हो? अरे हाँ नासपीटी, हाँ तुझसे नहीं, क्या दीवारों से कह रही हूँ। दादी क्या तुम हमें नहीं रोकोगी? दादी क्या तुम हमें 10वीं के बाद भी पढ़ने दोगी? अरे हाँ तुम वक्त मारी। हाँ दादी
क्या तुम मेरी चोटी बांध दोगी? हाँ, मैं तेरी चोटी बांध दूंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? बोलो तो। पहले उधर को चलो। शर्त ये है, मैं तेरी चोटी बांधूंगी, लेकिन तू मुझे रोजाना 1 घंटे पढ़ाएगी। बोल, मंजूर है? लो सुनो सुनो, लो सुनो सुनो, दादी मुझसे कह रही है, दादी मुझसे कह रही है कि मैं उन्हें रोजाना 1 घंटे पढ़ाया करूंगी। दादी कह रही है मुझसे। अम्मा, ईमान से क्या तुम इस उम्र में पढ़ोगी? अरे हाँ, कम बखत मारी, हर्जे क्या है? अम्मा, क्या तुम सच में पढ़ोगी? वो भी इस उम्र में? सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे सबके सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए? दादी दादी, रुबीना को तो ठीक से पढ़ना नहीं आता, वो तुम्हें क्या पढ़ाएगी? अरे तो तू किस दिन काम आएगी? तू ही मुझे पढ़ा दिया कर, और अगर तेरी माँ राजी हो तो उसे भी ले ले। अरे मोहम्मदी, तू भी समीना की शागिर्दी में आ जा। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी आला से आला तालीम दें। शुक्रिया। इसके बाद उबैद अहमद साहब, डायरेक्टर टीम के दूसरे। उबैद अहमद साहब बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ लाए। मुदस्सिर मुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको नवाजे मेहनतों से। संजीव राय साहब, संजीव राय हमारे डायरेक्टर टीम के
शाहिदा बेगम, धनपति देवी, ये थी हमारी सपोर्ट स्टाफ स्कूल की जो बहुत मेहनत करती है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती है। और अब बारी है टीचरों की। आज जो बच्चों को देख रहे हैं जो एकदम पहला जनरेशन लर्नर है, उनकी वजह से वो आज ये चमक रहे हैं स्टेज पे। उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाजिया शहजाद, टीचिंग असिस्टेंट शाजिया शहजाद। अफसाना परवीन, अफसाना परवीन हमारी हिंदी की टीचर है। तबस्सुम परवीन मैं सामने देख रहा हूँ, और भी मौजूद है यहाँ पे। नुज़रत ज़ैनब, तानिया परवीन, कफीरा अंसारी, हमारे ऑफिस एग्जीक्यूटिव है नौशाबा परवीन, अब हमारी कुछ टीचर्स हैं जो टीचर घोष, समरा महमूद उस्मानी, अरबिका मंडल इंडिया की तरफ से हमारे स्कूल में पढ़ाती है, बहुत ही डेडिकेशन। सिमरन जहां, खुशनुमा सलीम, तस्नीम, and last but not the least, the teacher in charge. वेरी शॉर्ट मैसेज। कुरान की एक आयत का एक हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है। आज का ये जो प्रोग्राम है काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो ये काम कर रहे हैं। और बिगिनिंग आगाज़ से पहला प्रोग्राम था और आज एस्पिरेशन अज़्म के नाम से ये प्रोग्राम है। कुरान पाक में ये लफ्ज़ कई जगह इस्तेमाल हुआ है, मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। एस्पिरेशन के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, कमिटमेंट के माने में भी इस्तेमाल हुआ है और डेडिकेशन के माने में भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक मैसेज दिया है जिसमें लफ्ज़ अज़्म आया है, बस वो मैसेज मैं आप तक पहुँचाऊँ। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह। कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत मशवरा करो। व तुशाविरहुम फ़िल अम्री। अच्छे लोगों का तरीका ये होता है कि कोई भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, मशवरे कर लेते हैं। फ़इज़ा अज़म्ता, फिर जब वो अज़म कर लेते हैं, हिम्मत के साथ, इरादे के साथ, ख्वाहिश के साथ, तमन्ना के साथ, उम्मीदों के साथ आगे आ जाते हैं, फिर वो रुकते नहीं हैं। अब सफ़र जब शुरू हो जाता है तो अब बस अल्लाह पे भरोसा करना है। फ़तवक्कल अलल्लाह, उनको चाहिए कि अल्लाह पे भरोसा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जो लोग भी अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके काम आता है, उनके भरोसे को पूरा करता है। आज़म के नाम से ये प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जानते हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। हम सब को ये काम करना है, इरादे के साथ एक दूसरे का साथ देना है। मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पे काम करने का मौका दिया है। दीनियात मेरा मौजू है। 26 सालों में एक सिलसिला तफसीर का मुकम्मल हुआ था, फिर से वो चल रहा है। मैं उन तमाम इल्म की रोशनी में आपको बताता हूँ कि इल्म होता है और हर इल्म की यकसा अहमियत है। कोई दीन, हमने दीन को, इल्म को बांट दिया है, दीन और दुनिया का नाम दे दिया, हालांकि ये ऐसा है नहीं। हकीकत में इल्म होता है और हर इल्म की उसी तरह अहमियत है जिस तरह किसी दूसरे इल्म की हो सकती है, किसी शोबे की हो सकती है। मैं अपने टीचर से बात कर रहा था, तज़ीन मैम यहाँ पे हैं, उनके साथ ही 2 दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि आप जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस पढ़ाती हैं
ये बिल्कुल उससे कम सवाब नहीं है जो लोग दीन पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, फिक्र पढ़ाते हैं, क्योंकि हर इल्म ज़रूरी होता है कि इंसान के लिए इल्म इंसान को खुदा तक लेकर जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और बिना इल्म वाले कभी बराबर नहीं होते। अल्लाह ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से कौन डरता है तुम्हें मालूम है? अल्लाह से वो डरता है जिसके पास इल्म होता है। जो खुदा को जानेगा नहीं उससे डरेगा कैसे, जो इसको मालूम ही ना हो। ये इल्म इंसान को इंसान बनाता है और उसको इतना ऊपर ले जाता है कि फरिश्ते भी उसके आगे झुक जाते हैं। आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको सलाम करता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं और हर वक्त आपके साथ खड़ा हूं। मेरे लायक कोई भी काम छोटा बड़ा कभी भी हो और हम सबको रहना चाहिए। अल्लाह ताला इस काम में बरकत दे और इसको कबूल करे, दुनिया की भलाई का जरिया बने, आखिरत का जरिया, कामयाबी का जरिया बने। मैं उस दुआ के साथ बात खत्म करता हूँ, वो दुआ जो अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में रखी है और जो मुसलमानों को सिखाई है, जो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने उस वक्त की थी जब वो खाना काबा बना रहे थे। उसी दुआ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे रब हमारे इस काम को कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। আমি এখানে এসে যেটা দেখলাম যে একটা ইচ্ছা থাকলে যে কত কি করা যায় তার প্রমাণ এখানে পেয়ে গেলাম। আমি এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দীর্ঘদিন ওই কলিম সাহেব সাকিব সাহেবের কাছে শুনি। শুরুটা এত ছোট দিয়ে শুরু করেছিল যে এটা এইভাবে এত বড় বাস্ট করবে আর যেভাবে চলছে এটা অদূর ভবিষ্যতে শুধু বেঙ্গল নয় ভারতবর্ষে একটা দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠান হবে। আর স্টুডেন্টদের বলবো তোমরা শিক্ষকদের কথা শুনবে এবং তোমাদের যা দক্ষতা আছে তা সর্বোপরি পরিস্ফুটিত করার চেষ্টা করবে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের শুভ কামনা করি আর আরো বড় হোক। আর এখানকার ছেলেমেয়েরা শুধু পড়াশোনা নয় সমস্ত স্কিলে যাতে এক্সেলেন্ট হয় সেই আশীর্বাদ দোয়া থাকবে আমার, আরো বড় হোক। Adab. I'll begin with this thing that I was fortunate enough to have witnessed the आगाज और आज अज़्म देखकर ये आई एम विटनेस टू दिस कि ये स्कूल और कामयाब होगा बिकॉज आगाज से लेकर अज़्म का जो जर्नी है 2 साल का वंडरफुल है। इट्स लीव्स एंड बाउंड्स। जो बच्चों के परफॉर्मेंसेस हैं उनके जो कॉन्फिडेंस है जो आगाज़ में था अज़्म में और ज़्यादा है। इट्स सच अ लीव, इट्स सच अ डिफरेंस। I wish all the teachers well who have done such a wonderful job. इन बच्चों को लेकर के इनके साथ इनको ट्रेन करना और ये 2 महीने की ट्रेनिंग से नहीं होता है। ये आज का जो कॉन्फिडेंस है, आज का जो स्टेज परफॉर्मेंसेस है, इट इज़ नॉट अबाउट द लास्ट 2 months कि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की हो। अगर ये थ्रू आउट द ईयर इनके साथ न लगी रहे तो ये परफॉर्मेंसेस यहाँ पर नहीं हो। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। Thank you and thank you also for having me here. Salam. It was a wonderful experience watching them perform. I'm really falling short of words, like what has to be said. But what I would say is blessings be upon the little angels who performed so well, and blessings be upon the trustees and their efforts which has made this possible. So I would wish all the best to the future of this foundation and all my best wishes. आज हम लोग ऐसे फंक्शन का मुशाहिदा किया है जो किसी स्कूल का एनुअल प्रोग्राम। स्कूल तो बहुत से खुलते हैं, उसमें पढ़ने का नज़्म अलग अलग होता है, लेकिन इस स्कूल के चलने के पीछे जिन लोगों का जहन या जिनके फिक्र कार फरमा है और जिन लोगों के हाथों ये स्कूल चल रहा है वो काबिल सब मुबारकबाद हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत से मामलात में बिल्कुल नई सोच लाई है कि बच्चों को ज़िंदगी के मामलात से रोशनास कराने के लिए। कलीम साहब कह रहे थे कि पुलिस स्टेशन का विज़िट करवाते हैं, कॉर्पोरेशन के ऑफिस का विज़िट करवाते हैं, तो इस तरह के जगहों का विज़िट करा के उनके बारे में बच्चों को वाक़ियत दिलाकर
उनको अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छी तरह से तैयार करते हैं और उनकी झिझक को दूर करते हैं और एक अच्छा शहरी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बस इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह इस स्कूल को मज़ीद तरक्की दे और जो लोग इसके पीछे कार फरमा हैं उनको हिम्मत, हौसला और काम करने का अज़्म दे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आप लोग हमारा जो हौसला है, हम जिस मंजिल की तरफ देख रहे हैं, हमेशा आप लोग हमारे साथ रहे, हमें हौसला देते रहे। वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे ट्रस्टी मिस्टर शकील अहमद, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट ऑफ थैंक्स दें। इसके Assalamu alaikum everyone. Thank you for being here today. We have guest trustees, donors, parents as well as our children. It makes me very happy to speak to you at the closing ceremony of our annual function. This event is not just about celebrating what we have accomplished over the past year. It also shows how we work together to help children through education. First, I want to say a big thank to you all, especially our trustees, our donors. Your hard work and strong support are what keep our school running. You believe in what we do. Because of you, many children have been given a chance to learn, grow, and dream. Your generosity helps us provide the resources our students need. And we appreciate every bit of support you gave. To our trustees, thank you for your guidance. You help us stay focused on our goals and overcome challenges. Your expertise is invaluable to us. And a heartfelt thank to all our donors, whether you are individuals or local businesses. Your contributions have made a real difference in the lives of our students. Every gift, no matter its size, helps changes in life. Let's now celebrate our amazing students. Each of you is special, and your hard work and determination inspire all of us. We applaud you for every challenge you have faced and for all the things you have accomplished. I also want to thank the parents. Your support, your love mean the world to your children. You are the biggest cheerleaders, and your belief in them help us all. Together we are creating a place where dreams can come true. We believe education is a powerful tool for change. With that goal in mind, we are expanding our school to become bigger and better. But we cannot do this alone. We invite all of you to join us in this new project, whether through funding, sharing your skills or connecting us with others. ये आज हमारा दूसरा एनुअल फंक्शन हुआ। पहला एनुअल फंक्शन हमारा 2022 में हुआ था, लेकिन चूंकि ये कितना एलैबोरेट अरेंजमेंट होता है, हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हर साल करने में। ये तो आपने देखा होगा आज के प्रोग्राम के ज़रिए कि काफ़ी खर्च आता है, तो हम लोग चूँकि इस हिसाब से चलते हैं, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये दूसरा प्रोग्राम था अज़्म, द एस्पिरेशन। तो हमारा जो अज़्म है, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, वो ये है कि हम बच्चों को किस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करें स्कूल का, जो क्लास 10, 12 तक चले। और जाहिर सी बात है, हम लोगों ने कोशिश की है इस सिलसिले में। अभी फ़िलहाल क्लास 7 तक हमारा स्कूल चल रहा है। 2019 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉन्टेसरी टू क्लास 7 अभी है, वो गुलशन कॉलोनी पंचरन ग्राम में ये चल रहा है। 275 बच्चे अभी यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इनको फ्री इंग्लिश एजुकेशन, फ्री बुक्स एंड स्टेशनरी, फ्री यूनिफॉर्म, शूज़, बैग, स्वेटर्स। और चूँकि बहुत इम्पोवरिश्ड ख़ानदान से आते हैं, तो उनको मिड डे स्नैक्स भी हम लोग फ्री फ्राहम करते हैं ताकि बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन मिले। साल में हम लोग 2 बार मेडिकल कैंप करवाते हैं और बच्चों को बहुत सारा जो डिफिशिएंसी होती है, विटामिन डिफिशिएंसी से बहुत सारी जो ये होती हैं, उनको दूर करने के लिए उनको मेडिसिन भी फराहम करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपने जैसे सुना होगा कि हम लोग मॉल्स हैं, एग्जीबिशन हैं, म्यूज़ियम्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, बोरो ऑफिस हैं, इस तरह की जगहों में ले आते हैं ताकि उनका
पूरा एक ओवरऑल एक्सपोजर हो, ये चीज़। आइंदा अलामल आपने सुना होगा कि हम लोगों ने 4.5 बीघा ज़मीन हम लोगों ने ख़रीदा है और वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। वहाँ बाकायदा पूरा फुल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 26 के लिए 2025 और 26 के लिए मंजर साहब आपका क्या प्रोग्राम है इन द कमिंग ईयर? कमिंग ईयर हमारा अभी तो क्लास 8 स्टार्ट करने वाले हैं और मज़ीद बच्चे भी आएंगे, क्लास 8 स्टार्ट करने वाले हैं। फिर जैसा होगा फिर उस हिसाब से हम लोग अपना लायामल तैयार करेंगे। KCT एकेडमी का प्रोग्राम था। KCT एकेडमी जो है कोलकाता एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में एक मुकम्मल तौर पर मुफ्त स्कूल है जहाँ से बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं दी जाती, बल्कि साथ साथ उसमें जो है बच्चों को हम लोग फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बैग्स, फ्री शूज़ और हर दिन एक न्यूट्रिशियस मील भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी मॉन्टेसरी का 2 क्लासेस है और क्लास 7 तक है, 1 से 7 तक है, तो 9 क्लासेस है। अप्रैल में हम लोग शुरू करेंगे अगला सेशन में। ये CBSE बोर्ड के तहत होता है इसलिए इसके अप्रैल में होता है और क्लास 8 इसमें जुड़ेगा। हमारी जो पहली मंजिल है वो है क्लास 10 पास कराना बच्चों को, और उसके बाद हमारा तो ख्वाब बहुत ऊंचा है कि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज भी तैयार किया जाए, लेकिन पहली मंजिल यही है कि बच्चों को क्लास 10 पास करा के क्लास 12 तक उनको ले और उनके साथ रहे। जब बच्चे सभी बच्चे हम आपने देखा होगा कि आज स्टेज पे इतने सारे बच्चों ने परफॉर्म किया, इसमें हमने हर एक बच्चा जो हमारा स्कूल का था जो इसमें पढ़ता है 271 बच्चे सबों को स्टेज पे लाया है। हमारा है कि सब बच्चे एक साथ ही बढ़े और किसी भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला पे हम लोग जोर नहीं देते, सभी बच्चों की अच्छी तरबियत अच्छी तालीम इसी कोशिश करते हैं। फ्यूचर के लिए क्या प्रोग्राम आप लोगों का बताया? तो ये हम लोग फ्यूचर जो है बच्चों को सबसे जो फ्यूचर है कि ये बच्चे जो हमारे साथ हैं ये आगे चल के सब अपने पैरों पे खड़े हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी बने, ज़िम्मेदार इंसान बने और रियासत और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा बटाए, साथ निभाए। पब्लिक और आवाम के लिए कोई पैगाम? देखिए जो हम लोग मिडिल इनकम लोअर मिडिल क्लास से जो हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं इनके लिए जो है अपने पाँव पे खड़े होने पे ज़िंदगी में कामयाब होने का एक ही ज़रिया है, वो है तालीम। तो मैं सबों से ये करूँगा कि अपने बच्चों को तालीम दें, मयारी तालीम दिलाएं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल खुले हैं जो मयारी नहीं है, उनमें पढ़कर बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। जो अच्छे स्कूल है उसमें दें और साथ साथ घर में भी उनका ख्याल रखें, उनका साथ दें, उनके अंदर उनको ख्वाब दिखाएं, बड़ा बनने का ऊंचा सपना दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जो KCT का स्कूल का प्रोग्राम हुआ है। ये एनुअल फंक्शन है माशाल्लाह। इसमें वन ऑफ द ट्रस्टी में मैं भी हूँ, एक मेरा भी इसमें योगदान है कि यहाँ के गरीब तर बच्चे, गरीब से गरीब तर बच्चों को तालीम दिया जा रहा है और किसी तरह का उनके ऊपर बर्डन नहीं दिया जा रहा है। मिड डे मील के साथ मेडिकल की फैसिलिटीज, यूनिफॉर्म, सारे चीज़ का मुहैया किया जा रहा है और एक अच्छे मेयार का तालीम दिया जा रहा है। इसमें गरीब बच्चे हैं लेकिन उनको देख के ये नहीं लगेगा कि ये गरीब बच्चे हैं, इनको वही फैसिलिटीज़ मिल रही है जो एक बड़े स्कूलों में दिया जाता है और बड़े स्कूलों में जो करिकुलम होते हैं उन करिकुलम को मैच किया जाता है। माशाल्लाह इसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं इस इदारे से। हम चंद लोग मिलकर शुरू किए थे, 10 दोस्त मिलकर शुरू किए थे, आज कारवां बन गया है, काफ़ी लोग हमारे साथ हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिटायर्ड DCP हूँ कलकत्ता पुलिस का एंड वन ऑफ द ट्रस्टी ऑफ द KCT एकेडमी। जी सर, इस प्रोग्राम के ताल्लुक से 2-4 बातें। ये हम लोग के स्कूल का दूसरा एनुअल फंक्शन था। पहला प्रोग्राम हम लोग 2 साल पहले किए थे KCT एकेडमी का, तो ये हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन, दूसरा एनुअल फंक्शन था जो हम लोगों ने किया था 1 साल के गैप देके। पहला हमारा प्रोग्राम जो था उसको हम लोगों ने आगाज़ के नाम से शुरुआत किया था और आज इस प्रोग्राम को हम लोगों ने अज़्म द एस्पिरेशन के नाम से शुरू किया है और किया था। और इस अज़्म के साथ कि हम लोग आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकें अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, इसी अज़्म के साथ ही आज हम लोगों ने प्रोग्राम को एहतमाम किया है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 2019 में हम लोगों ने शुरू किया था इस स्कूल को, तो हमारे यहाँ 30-40 बच्चे हुआ करते थे। आज अल्लाह के करम से 280 बच्चे हैं और क्लास 7 हम लोगों का रन कर रहा है। और इसके पीछे
जो ट्रस्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उनका बड़ा रोल है। जो खास करके जो टीचर लोग हैं, जो मेंटर हैं हमारे, वो काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे जो स्पॉन्सरर हैं, हमारे जो वेल विशर हैं, उनका भी बड़ा ताउन रहा है कि आज हम लोग जिस मकाम पे पहुँचे हैं। कोई भी काम करने के लिए आपका वन ऑफ द जो फैक्टर है, पिलर है, वो है फिनांस। तो फिनांस के लिए हम लोगों को लोगों ने बहुत काफ़ी सपोर्ट किया है। हर जहाँ से भी हम लोग गए हैं, जिसको भी हम लोगों ने आवाज़ दी है, उन्होंने लब्बैक कहा है। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग सोचते हैं कि इस तरह से लोग ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इस काम को और आगे